Okay, so now this is Shah Latif's poetry. The last part of this chapter, they are telling us something about Shah Saab's poetry. Saeed, beta, would you like to read this paragraph? जी सर। Yes, beta, read. Shah Latif's poetry. Shah Abdul Latif was a sensitive, gentle, and kind soul. He was a Sufi in the true sense of the word. Word. The word, the word Latif literally means fine, delicate, tender, elegant, and light. Acha, now wait till here. So do you understand? Look at the words they have used. You should know the meanings of these words, okay? Shah Abdul जी Latif सर। was a sensitive, gentle, and kind soul. देखें किसी की personality describe करनी होती है तो while describing the personality you can use all these adjectives. Sensitive थे जी बहुत, he was a sensitive person. Okay, you know what is a sensitive person? You know what is a sensitive सर, जो बातें जैसे महसूस करता हो Yes, ज्यादा। exactly. Sensitive means a person who has a good sense of feeling, or yes, you are right, who feels things in a better way, or deeper as compared to others. Usually poets have a sensitive mind. Poets होते हैं ज़्यादातर, they have a sensitive mind. तो इसलिए कि वो चीज़ों को ज़्यादा फील करते हैं. So that is why they basically write poetry and they express their feelings so deeply. ये सेंसिटिव थे शाह अब्दुल लतीफ़ साहब. इस तरह सेंसिटिव थे कि when he used to look at different things, the mountains, the rivers, and the trees, the plants, the birds, he would try to think deeply, ponder over the creation of Almighty Allah, and he would start writing poetry regarding whatever he would see. अब वो बादलों को देखते थे, rain को देखते थे, he would write about rain, clouds, and he was gentle and a kind soul. Gentle and a kind soul का क्या मतलब है? कि he was very kind to others. He was he had a very calm, kind and good nature. तो जिसकी वजह से क्या होता था, पीपल वर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हिम. लोग इनसे बात करना पसंद करते थे. आप जैसी बात है, कोई अगर काइंड होता है and someone who talks politely to you and who listens to you carefully, तो यू लाइक टू टॉक टू सच पीपल. अब कोई आपकी बात ही नहीं सुन रहा, आपको कोई इग्नोर कर रहा है, तो आप उससे बात करना पसंद नहीं करते ना. आप कहते हैं यार मेरी कोई बात ही नहीं सुन रहा, और या इतना कोई रूड हो, तो आप रूड लोगों से भी बात करना पसंद नहीं करते. यूजुअली पीपल लाइक टू टॉक टू somebody who's very kind. All right. So he was a gentle and a kind soul. सोल इंसान की रूह. तो किसी इंसान को समझाने के लिए सोल का वर्ड भी यूज किया जाता है. ऑल राइट. फिर आपने पढ़ा कि he was a Sufi in the true sense of the word. In the true sense of the word का मतलब होता है हकीकतन. ठीक है, वाकतन सूफी यानी सही मानों में नेक इंसान थे, सूफी थे. जी, somebody has raised his hand. Yes my dear, you want to ask something? Please ask me. सर आपकी आवाज कम आ रही है सर। कम आ रही है? सबको कम आ रही है बेटा? सर बस मुझे थोड़ी सी कम आ रही सर है, मेरे ज्यादा पास नहीं आ तो रही, ठीक बस सही आ रही है। ऑल राइट, ऑल राइट. अच्छा, अब आप जरा मैं ठीक है थोड़ा सा माइक को और करीब कर लेता हूँ, और आप भी जरा दिल के कानों से भी सुने, ठीक है? अच्छा जी. नाउ लेट्स रीड द नेक्स्ट सेंटेंस. द वर्ड लतीफ. लतीफ अल्लाह की सिफात में से भी है ना. तो द वर्ड, हम इसीलिए जब किसका नाम लतीफ़ होता है तो हम लतीफ़ नहीं कहते, अब्दुल लतीफ़ कहते हैं. तो देखिए इनका नाम भी लतीफ़ था, तो यही जो द वर्ड लतीफ़ had its reflection on his personality also. His personality was also fine, delicate, tender, elegant. यानी बहुत अच्छे थे, फाइन थे, डेलिकेट हसास मिजाज, नाजुक मिजाज. टेंडर, टेंडर भी इसी तरह के मतलब में आता है, कोई नाजुक या हसास मिजाज हो. एलिगेंट, सी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग्स ऑफ ऑल दीज वर्ड्स. ये जो यहाँ मीनिंग्स हैं,
देखो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। डेलिकेट भी नाजुक हसास के मानों में आता है, टेंडर का भी सर तकरीबन ऐसा ही मिजाज, नरम मिजाज। डेलिकेट का मतलब क्या होता है? हसास और नाजुक। यस बेटा, कैन यू हियर मी नाउ? कैन यू हियर मी नाउ? जी जी सर, सर। अब आवाज आ रही है आपकी। हाँ बेटा, वो कुछ मेरे ख्याल में अचानक डिस्कनेक्ट हो गया था शायद। ऑल राइट। All right, dear. So now we were talking about this. आप क्या आपने क्वेश्चन पूछा था बेटा? ये सर आपकी दिल्ली, स्क्रीन मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ दोबारा, ठीक है? ठीक है, इज द स्क्रीन शेयर नाउ? ठीक है। जी सर, आ गई, स्क्रीन आ गई सर। अच्छा, तो हम ये वर्ड्स डिस्कस कर रहे थे। ठीक है जी, ये वर्ड आपने कहा था डेलिकेट ना? तो डेलिकेट भी नाजुक हसास जी को सर। कहते हैं, ठीक है? इसी तरह टेंडर का भी यही मतलब होता है। आपने सुना है टेंडर? आप यूजुअली जब कोई गोश्त वगैरह के लिए भी यूज होता है टेंडर मीट। बहुत अच्छा सा गला हुआ हो ना, नरम हो, बहुत सॉफ्ट हो, तो उसके लिए भी टेंडर का वर्ड यूज होता है। अच्छा, फिर आपने देखा होगा कि सर ये वो वाले लफ्ज है ना सारे, हाँ, हसास के ये माना। क्या कहते हैं उनको? ठीक है। हाँ, हाँ, These are all adjectives describing final। the personality of Shah Abdul Latif. All right. You can use these words when you are explaining or describing a personality. अच्छा, similarly फिर word है elegant. Elegant is also a very gentle person, a very intelligent person, a good person, elegant and light. Okay. This meaning is truly reflected in both his poetry and his personality. तो ये सारी बातें उनकी पोइट्री में भी मिलती थी, and these words were also reflected in the personality of Shah Abdul Latif. You understand, children? So he was delicate, tender, elegant. He was soft-spoken. He was polite. He was, kind to others. All right. Now read from here. The next sentence. Moreover, सर मैं ही रीड करूं या किसी और से कराएं? continue करो, continue करो. Moreover, he was a poet of the people, so he wrote in the language of the common man. Very good. In Yes. his poems, he writes mainly about Sindh and its neighboring regions. Yes. However, he also mentions distant cities such as Istanbul and Samarkand, and also talks about Sindhi sailors, Samundi, Samundi. Yes. their navigation. समंदर से ये वर्ड निकला होगा, समुंदी, यानी जो शिप्स वगैरह सेल करते हैं, शिप्स चलाते हैं, ठीक है ना, सेलर्स होते हैं। शायद आर भी हो, समुद्री हो। नहीं ये बेटा, ये मैंने सिंधी तो मुझे नहीं आती, लेकिन मैंने सिंधी टीचर से पूछा था, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये जैसे समंदर कहते हैं तो समुंदी माड़ू, इस तरह ये लोग कहते हैं समंडी माड़ू, यानी जो सिंध, ये जो सेलर्स होते हैं, जो कश्तियां वगैरह चलाते हैं, इनको कहते हैं, ठीक है? their navigation techniques and their वॉयजेस voyages as far as the Malabar coast. मलबार कोस्ट, Sri जी मलबार कोस्ट, pronounce श्रीलंका एंड द आइलैंड ऑफ जावा। Mal Malabar coast, Sri Lanka, and the island of Java. Here अच्छा is the translation of one such verse. अच्छा, अभी ये जरा एक मिनट, ये बाद में पढ़ते हैं, पहले इनको समझे देखें। ये बड़ी इन्होंने बताया है कि क्या शाह साहब की पोइट्री किस टाइप की थी। अब थोड़ा सा देखें इनकी पर्सनालिटी के बारे में, तो इन्होंने बहुत बताया। दे हैव टोल्ड यू सो मच अबाउट शाह साहब्स पर्सनालिटी, बट नाउ दे आर डिस्कसिंग हिज पोइट्री। व्हाट काइंड ऑफ पोइट्री शाह साहब हैड रिटन, किस तरह की पोइट्री लिखते थे। तो नाउ यू सी हिज पोइट्री बेसिकली, इट टॉक्स अबाउट सिंध। सिंध की उसमें बातें करते थे, क्योंकि थे तो सिंध के ना, एंड नेबरिंग रीजन्स, the places which were close by, close to Sindh,
एंड ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट डिस्टेंट सिटीज, और सिटीज की भी उन्होंने बात की है जैसे कि इस्तांबुल एंड समरकंद, ऑलराइट। एंड ही टॉक्स अबाउट सिंधी सेलर्स, सिंधी सेलर्स को समंदी कहते हैं, ठीक है ना, समंदी। एंड देयर नेविगेशन टेक्निक्स, व्हाट डू यू मीन बाय नेविगेशन, नेविगेशन किसे कहते हैं? यानी एक्सप्लोर करना, यानी हम जी जैसे सर। आप कहते हैं ना इंटरनेट पे, हम कहते हैं कि यू आर सर्चिंग, एक्सप्लोरिंग, नेविगेटिंग डिफरेंट वेबसाइट्स, तो दिस इज कॉल्ड नेविगेशन, ढूंढना, तलाश करना, एक्सप्लोर करना। तो जो सिंधी सेलर्स थे उनकी नेविगेशन टेक्निक्स के बारे में इन्होंने कुछ बातें की हैं। He has discussed their navigation, their the navigation techniques, the way they used to explore, and he has discussed all that in his poetry. And he has also talked about the voyages, यानी वही सफर जो होते हैं, voyages, travels as far as the Malabar coast, Sri Lanka and the island of Java। ये सारे सफर जो होते थे, इसके बारे में भी उन्होंने अपनी पोइट्री में कुछ बातें की हैं। अच्छा, now is a translation of his poetry in English। इंग्लिश ट्रांसलेशन इनकी पोइट्री से कुछ एक्सट्रैक्ट इन्होंने हमें यहाँ बताया है, so that you can understand what kind of poetry he used to write। अच्छा, can somebody else now read the extract from his poetry? कोई रीड करेंगे बेटा? कौन रीड करेगा? Who would read it now? Can somebody read the extract from his poetry? Yes, Sayyid Taha. Yes, beta, read. Clouds return, and once again it rains, lightning flashes from all Clouds sides. return and once again it rains। अरे भाई शायरी पढ़ रहे हैं मेरे बेटा, ऐसे सोते हुए शायरी थोड़ी पढ़ते हैं। Clouds return and once again it rains। Clouds returns, and once again it rains, lightning flashes from all sides, and with it some go to Istanbul, others turn to the west. Very good। अच्छा, now Some wait, wait, shine bright wait, over wait। थोड़ा China. थोड़ा 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 समझेंगे, थोड़ा थोड़ा। Do not read all together। Clouds return and once again it rains। ठीक है, कह रहे हैं कि clouds return का क्या मतलब है? Return means, what is the meaning of return? सर दोबारा। Yes, yes, to come back। अच्छा, एक मैं ग्रामेटिकल क्वेश्चन या पूछूं आपसे, आप लोग बताएंगे, जवाब देंगे। ये रिटर्न क्यों लिखा हुआ है? रिटर्न्स क्यों नहीं लिखा हुआ? एस क्यों नहीं लगा हुआ रिटर्न के आगे? कोई बता सकता है? Why is it written clouds return and why isn't it written clouds returns? Can somebody tell me this? मैं आपका सवाल सीधे समझ नहीं पाया। I'm repeating my question। देखो ये लिखा हुआ है लिखा clouds return, okay? लिखा हुआ है जी सर। clouds सर returns, क्यों नहीं लिखा हुआ? सर क्योंकि क्लाउड्स अब वो हो गया है ना, क्लाउड अगर सिर्फ क्लाउड होता तो वो एक की बात, अभी क्लाउड्स हो गए तो उनको रूलर की वजह से आगे वो उसको। Very good, very good, very good। When the word is a plural, you have to add an s to the first form or the present form of the verb। ठीक है, here it is plural clouds, so you will say clouds return। All right, ये subject verb agreement का question था। Your answer is correct। Clouds return and once again it rains। क्या मतलब हुआ कि clouds आ गए दोबारा, और clouds आते हैं तो क्या हो जाता है? क्या हो जाता है clouds आते हैं तो? सर दोबारा बारिश हो जाती इट रेन्स। हाँ, रेनिंग होती है, बारिश होती है। हमारे यहाँ क्लाउड्स आए हुए हैं लेकिन बारिश नहीं हुई। तो आप सब दुआ करें, आप नेक लोग हैं, इंशाल्लाह आफियत वाली बारिश भी हो। बारिश की दुआ है आती है किसी को? इंशाअल्लाह। बारिश होती है तो क्या? अल्लाहुम्मा। अल्लाहुम्मा सईबन नाफिया, ऐसी वेरी कुछ गुड, दुआ वेरी है गुड। सर। जी जी, अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफिया। ठीक है ना, जब बारिश हो रही हो तो नफे वाली बारिश के लिए दुआ करते हैं। अच्छा जी, lightning flashes from all sides। what is the meaning of lightning? लाइटनिंग फ्लैशेस, फ्लैशेस मतलब ये देखिए, ये साइन बना हुआ होता है फ्लैशेस पे, लाइटनिंग फ्लैशेस। हाँ, जो यानी बादल गरजते हैं ना, लाइटनिंग। ठीक है, थंडर, लाइटनिंग। जब आप देखते हैं जब तेज बारिश होती है तो क्या होता है? लाइटनिंग फ्लैशेस फ्रॉम ऑल साइड्स एंड विद इट
और जब इसके साथ क्या होता है, एंड विद इट सम गो टू इस्तांबुल, कुछ चले जाते हैं इस्तांबुल। सम मतलब कौन कौन लोग चले जाते हैं, क्या मतलब है सम गो टू इस्तांबुल, अदर्स रिटर्न टू द वेस्ट वेस्ट, किसकी बात हो रही है, कुछ इस्तांबुल चले जाते हैं, लाइटनिंग, और जब बादल गरजते हैं व्हेन लाइटनिंग फ्लैशेस फ्रॉम ऑल साइड्स विद एंड विद इट सम गो टू इस्तांबुल, अदर्स टर्न टू द वेस्ट, ये किसकी बात हो रही है, कौन लोग चले जाते हैं। सर ये बादलों की बात हो रही है। Exactly, very good, very good. The poet is talking about the clouds over here. The clouds, some go to Istanbul and others turn to the west. कुछ clouds चले जाते हैं इस्तांबुल, कुछ वेस्ट में चले जाते हैं। आपने देखा है ना, तो ये बड़ी देखें एक बात है, जो वेदर को समझते हैं ना, तो आपने देखा है ना, अभी भी हम सुनते रहते हैं भाई एक सिस्टम आ रहा है, कोई कह रहा है भाई फला वेस्ट से सिस्टम आ रहा है, फला कंट्री से सिस्टम आ रहा है। तो clouds basically the whole systems, sometimes the whole system enters into another country, ऐसा भी होता है। तो ये कह रहे हैं कि clouds कुछ इस्तांबुल जा रहे हैं, others are going to the west। अच्छा, and then read bit after that, read यहाँ से क्या है, some Some shine, shine bright over China and others take care of Samarkand. very good, some shine bright over China। अच्छा, कुछ चाइना में चले जाते हैं, ठीक है, एंड अदर्स टेक केयर ऑफ समरकंद। टेक केयर, देखो इन्होंने ये नहीं कहा आप चले जाते हैं, दोबारा अलग अलग फ्रेजेस यूज किए। तो हियर द पोएट इज सेइंग, देखिए ये इसके Some ट्रांसलेशन का भी अपना एक वो है, तो ओरिजिनल पोइट्री तो और अच्छी होगी। अदर्स टेक केयर ऑफ समरकंद, मतलब कुछ समरकंद का ख्याल रखना। टेक केयर मींस टू केयर फॉर समबडी, ख्याल रखना। अच्छा, नाउ रीड some फ्रॉम हियर। wander to Rome, to Kabul and Kandahar. Some some lie on Delhi, दक्कन, De, Deccan, thundering over वेरी my beloved थंडरिंग ओवर, Allah बस बस may ठहर जाओ, थंडरिंग ओवर। beloved Allah may ये you आगे अलग है, always आगे अलग है, आगे make अलग sin. है। स्टॉप स्टॉप, वेट वेट, इतनी जल्दी नहीं करना, इतनी जल्दी। ये थंडरिंग ओवर पे फ्रेज खत्म हो रहा है, देन फ्रॉम हियर सम न्यू वर्स इज स्टार्टिंग, माय बिलव्ड अल्लाह से एक दुआ स्टार्ट हो रही है। अच्छा, नाउ सी देयर इज अ वर्ड ओवर हियर, वैंडर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैंडर, वैंडर का क्या मतलब है, वैंडर मींस टू गो हियर एंड देयर, ये मतलब याद है इधर उधर जाना। तो वैंडर मतलब जाना, चले जाना। वैंडर ऐसे भी कोई इधर उधर घूम रहा हो तो हम कहते हैं, बच्चों को भी कह सकते हैं वेयर आर यू वैंडरिंग, ठीक है, बगैर मकसद के कोई ऐसी बस टहल रहा हो, टू रोम अराउंड हियर एंड देयर। तो दिस वर्ड इज कॉल्ड वैंडर, ठीक है, वैंडर। तो ये क्लाउड्स के लिए यहाँ पर यूज किया है। अच्छा, इसी तरह ये वर्ड मेरे ख्याल में विलियम वर्ड्सवर्थ ने भी गालिबन यूज किया है अपनी पोइट्री में। ऑलराइट, तो इन्होंने भी यहाँ कहा है, सम वैंडर टू रोम टू काबुल एंड कंधार। काबुल एंड कंधार यहीं बराबर में अफगानिस्तान में। सम लाई ऑन दिल्ली दक्कन थंडरिंग ओवर, और कुछ कहाँ चले जाते हैं, दिल्ली में चले जाते हैं, दक्कन जो हैदराबाद दक्कन है, थंडरिंग ओवर गरजते हुए। थंडरिंग मींस गरजना। पहले इन्होंने वर्ड यूज My किया है लाइटनिंग एंड देन ही इज यूजिंग द वर्ड थंडरिंग। अच्छा, अब अल्लाह से दुआ कर रही हैं, क्या दुआ कर रहे हैं, रीड। my beloved Allah, may you always make sin a land of us of abundance. abundance, very good, abundance। abundance means, abundance क्या वर्ड होता है, abundance का मतलब, सर बंजर मतलब। ना 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 भाई, सिंध के लिए दुआ कर रहे हैं ना, तो सिंध को बंजर थोड़ी बनाने की दुआ करेंगे। माय बिलव्ड अल्लाह, है सर मेरे मैं प्यारे समझा कि वो ये दुआ करने के मतलब इस जमीन को बंजर ना करे ये। ये मफहूम तो यही बन रहा है, लेकिन abundance का मतलब क्या है, मे यू ऑलवेज मेक सिंध द लैंड ऑफ abundance। ये वैसे तो इंग्लिश में बरकत के लिए कोई सही वर्ड नहीं है, लेकिन अगर कुछ कुछ करीब आप कहना चाहें तो अबंडेंस शायद असरत। बरकत, बरकत जैसे कहते हैं ना, बरका बरकत, तो सिंध में ज्यादती हो, बरकतें हो, ठीक है ना, तो अबंडेंस रहमत ज्यादा है। होना, प्लेंटी होना किसी चीज का, ठीक है, प्लेंटीफुल, सही है ना। प्लेंटी एक वर्ड यूज होता है, पेनल्टी नहीं, अच्छा वो फुटबॉल में होती है। प्लेंटी किसी चीज की ज्यादती होना,
Okay, so this is called plenty, यानी कसरत। abundance में ज़्यादा, हाँ कसरत, कसरत भी कहते हैं, कसरत उर्दू के अंदर हम लोग कसरत का वर्ड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने सिंध के लिए दुआ की है कि सिंध में चीज़ों में कसरत हो, बरकत हो, ज़्यादती हो। ठीक है जी। ये आगे फिर अच्छा, फिर आगे देखें एक और वर्ड यूज़ किया, जरा इसको रीड करें। My beloved Allah, may you make prosperous the whole प्रॉस्परस, universe. प्रॉस्परस, ठीक है, मे यू मेक, तो इसको अगर आप एडजेक्टिव बनाना चाहें ना तो इसको आप यहाँ प्लेंटीफुल भी बना सकते हैं। अच्छा चलिए आगे पढ़ें। अच्छा प्रॉस्परस कह रहे हैं ना, व्हाट इज प्रॉस्परस? प्रॉस्परस, मे यू मेक प्रॉस्परस द होल यूनिवर्स, सब पूरी दुनिया के लिए, यूनिवर्स के लिए, बल्कि कायनात के लिए दुआ कर रहे हैं कि मे यू मेक प्रॉस्परस द होल यूनिवर्स। प्रॉस्परस का मतलब होता है कि जो अच्छा फ्यूचर, अच्छा मुस्तकबिल कर देना किसी का। ठीक है, तो सबके लिए इन्होंने अच्छी दुआ की कि पूरी कायनात को आप प्रॉस्परस बना दीजिए, सक्सेसफुल बना दीजिए। ठीक है, अच्छा बना दीजिए, कंफर्टेबल भी कह सकते हैं, फेवरेबल, कंफर्टेबल, सारे वर्ड्स यूज होते हैं। कामयाब बना दीजिए, अच्छा फ्यूचर होना। मे यू मेक प्रॉस्परस द होल यूनिवर्स। ठीक है, दिस इज हिज पोइट्री। ये इनके पोइट्री का एक एक्सट्रैक्ट था, एक छोटा सा हिस्सा था, और ये इन्होंने सुर सरंग शाह जो रिसालों से एक्सट्रैक्ट किया है, यहाँ रेफरेंस दिया हुआ है। ओके, इफ यू हैव एनीथिंग टू आस्क इन दिस प्लीज यू कैन आस्क मी। ठीक है, देन वी विल रीड द लास्ट पैराग्राफ। ठीक है, फिर हम लास्ट पैराग्राफ रीड करते हैं। मैं ये अंडरलाइन की हुई चीज़ें इरेज कर रहा हूँ। फिर ऑलराइट, अबंडेंस का मतलब रहमत भी हो सकती है, मतलब जैसे क्या उन्होंने मतलब हो बोला सकता है? मेक्स अ लैंड ऑफ अबंडेंस, हाँ, तो सिंध के ऊपर रहमत नाजिल फरमा। अल्लाह से दुआ मांगी उन्होंने। कह सकते हैं, लेकिन लफ्जी मतलब जो है ना असल में ये रहमत भी एक ऐसा इंग्लिश का, उसमें उर्दू का, अरबी का लफ्ज़ है, उसकी इंग्लिश में एग्जैक्ट ट्रांसलेशन आपको मिलना शायद मुश्किल हो जाए। तो अबंडेंस यूजुअली आप समझ लें ज्यादती, प्लेंटिफुल और बरकत, कसरत के मानों में यूज होता है। ठीक है ना? सही सर। अच्छा जी, रहमत के लिए फिर आपको पता है ना, जब हम रहमान रहीम वगैरह रहमत का तर्जुमा करते हैं तो मर्सी से करते हैं, मर्सीफुल, काइंड। ठीक है, अच्छा जी, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट पैराग्राफ। यस बेटा, रीड दिस लास्ट पैराग्राफ। सर मैं रीड करूं? जी जी बेटा, read. His collected poems have been compiled हाँ, in कंपाइल्ड, Shaj कंपाइल्ड Risalo. मतलब कलेक्टेड, कंपाइल, जमा करना किसी चीज़ को। तो इनकी जो मुख्तलिफ पोएम्स हैं बहुत अच्छी, जो सबसे ज़्यादा पसंद की गई, दोज मोस्ट लाइक्ड पोएम्स हैव बीन कलेक्टेड कंपाइल्ड इन शाहज और रिसालो। उस सबको कहाँ जमा किया? शाहज और रिसालों में। अब शाहज और रिसालो जो है ना वो बहुत फेमस हो गया। which has been translated into English, Urdu, and other languages. Yes, or then what happened? Shaj or Risala was translated into English, Urdu, and other languages also. His spiritual and and mystic Mystic, poetry mystic. and mystic poetry carries a Carries. message of love, carries a message of love, which makes it universal and acceptable to the entire human race. Yes, spiritual we discussed earlier. Spiritual हमने पहले भी कहा था, रूहानी। ठीक है, something to do with your soul. इससे आपको, आपके सोल, आपकी रूह को भी एक ग़िज़ा मिलती है, अच्छी बातें उसमें, आखिरत की बातें होती हैं। मिस्टिक भी वही जो दुनिया से बेरग़बत करने वाला हो, trying to tell you and give you the message that this world is going to end one day and we are all going to go in
next world, the hereafter. तो इनकी पोइट्री में भी ये मैसेज जगह जगह मिलता है. And it carries the message of love, which makes it universal and acceptable. Universal, which is liked or which is accepted in the whole world. Universal, acceptable, जिसे कबूल किया जाता है and to the entire human race. Human race is all the human beings. So all the human beings from different parts of the world, when they read his poetry, they like it and they accept it. Yes, somebody has raised his hand. What do you want to ask? जी बेटा, कुछ पूछना चाह रहे हैं? Okay, and now read the last line. Shah Abdul Latif Bidai, Shah Abdul Latif Bidai is and always will be remembered for this great poetry with love and reverence. 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 ये बड़ा Reverence. अच्छा वर्ड आपको ने सीखा है इस पोइट्री में, इस चैप्टर में. So remember this word. Shah Abdul Latif Bhittai is and always will be remembered for his great poetry with love and reverence. शाह अब्दुल लतीफ़ को हमेशा याद रखा जाएगा इनकी पोइट्री की वजह से. ये लोग इंसानों को देखें भूल जाते हैं, लेकिन वो इंसान अच्छा काम करके चला जाए ना जिससे लोगों को फायदा हो, तो हमेशा उसे याद रखा जाता है कि हाँ देखो इतने अच्छे आदमी थे, इन्होंने कितने अच्छे अच्छे काम किए. अच्छा, हम इतने सारे लोगों के बारे में पढ़ते हैं, तो पता है क्या, सिर्फ पढ़ने की हद तक ये बात नहीं होनी चाहिए. इंसान को ये सोचना चाहिए, देखिए ये भी एक इंसान थे ना, ठीक है, और बल्कि कहाँ वो सिंध के किसी इलाके में रहते थे, अरे वहाँ तो कुछ इतनी फैसिलिटीज भी नहीं होंगी, लेकिन No. काम इन्होंने ऐसे किए कि आज तक इनको याद रखा जाता है. तो इंसान के पास जो लिमिटेड वसाइल भी हो ना, तो हमेशा रोते नहीं रहना चाहिए, यार मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है. अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को, लिमिटेड वसाइल को यूज़ करते हुए कोशिश करनी चाहिए कि कोई ना कोई अच्छे काम करते रहे. बात समझ में आ रही है? जिससे इंसानियत को फ़ायदा हो, जिससे अल्लाह ताला राज़ी हो. तो चाहे कोई याद रखे ना रहे, लेकिन ये फ़ायदा होता है कि अल्लाह ताला का इंसान इंसान अल्लाह ताला के पसंदीदा बंदों में शुमार हो जाता है. तो ये कह रहे हैं कि इनको भी बहुत लव और रेवरेंस मिला ना. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेवरेंस? आपने कभी ये वर्ड सुना है, रेवरेंस? रेवरेंस मीन्स रिस्पेक्ट, आप कह सकते हैं, रिस्पेक्ट. ताजीम। हाँ, ताज़ीम का वर्ड यूज़ कर सकते हैं. रिस्पेक्ट ताज़ीम को कहते हैं. उर्दू में आप कह सकते हैं ताज़ीम, इज्जत मिली. इज्जत. हाँ, तो एक अच्छा वर्ड इन्होंने नया आपको सिखाया, reverence. Reverence means respect. So this is the end of this chapter, Shah Abdul Latif. All right. And if you have any questions, anything to ask me, you can ask me